Today, we have called all media friends for press briefing just to highlight the budget 2024-25 and overview of the union government budget. So, good afternoon, all media friends, for coming and capturing the overview of budget 2024-25. In the meantime, after completing budget, union budget, I would also like to throw lights about the state budget in nutshell. As you know, this year's budget, interim budget was placed in the month of February, and finally, few days back, final budget has been prepared. And in the budget 2024 and 25, the union government has particularly focused on employment, skilling, MSME, and for middle class people. There are so many packages in the budget, and opportunities for 4.1 crore youth over a period of 5 years has been provided. With that, I would like to highlight some of the budget of 2024 and 25. One important aspect is the youth and employment. Jan ko milega rozgar. The government has emphasized on giving rozgar, means employment opportunities to the youth, unemployed youths of the nation. That I would like to throw lights. 1 month wage for the new entrants up to rupees 15,000 into installment, benefiting 2.1 lakh youth. F4 incentives for manufacturing to both employers, benefiting 30 lakhs youth. EF4 contributions of employers to be reimbursed up to rupees 3,000 month for 2 years for new hires, creating 50 lakhs jobs. 20 lakhs youths to be skilled over 5 years, 1,000 ITIs to be upgraded, internship with 5,000 month stipends, rupees 6,000 one-time assistance for 1 crore youth in the next 5 years. As I have told, this year the government has emphasized on skilling. So for skilling, 20 lakh youth will be given training so that they can earn for their livelihood. 10 lakhs higher education loans with 10%, 3% interest has also been prescribed. 7.5 lakhs model schools loan schemes, 25,000 per year. 1.48 lakhs crores for youth employment scheme. That effort MSME से आत्मनिर्भर बनता भारत, ये जो ऐसे डिपार्टमेंट है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, जिसमें एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, जो भी एग्रीकल्चर हो, जो भी हो, लोन ग्रांट करता है, स्कीम प्रोवाइड करता है, जिसमें SIDBI will open 24 new branches and service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters. Credit support to MSMEs during stress period. I will just tell the important points, not all points. Herein, 20 lakhs limit for a Mudra loan has also been prescribed. Mudra loan जिसको पहले 10 लाख हुआ करता था, उसके एनहेंस करके 20 lakhs कर दिया है. फर्दर जिसमें MSME के तहत हम रेंटल हाउसिंग विथ डॉर्मेटरी टाइप्स accommodation, industrial workers in PPP mode with BGP support for facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee. Credit guarantee schemes will be introduced. Establishment of 50 multi-product food irrigations unit and 100 food quality and food testing labs in MSME sectors. मैं जो बात कर रहा हूँ कि नेशनल बजट का यूनियन बजट को लेके बात कर रहा हूँ,
एग्रीकल्चर भाजपा की शान, कुशल किसान. We are not only focusing to industrial sector, we are also giving emphasis to the agriculturalist, जो हमारे किसान भाइयों के लिए भी हम बहुत अच्छा लाया है financially. Financial support to set up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stock and shrimp farming, processing and exports to be facilitated through NABARD. Release of new 100 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticulture crops and development of large-scale cluster for vegetable production. Polavaram irrigation projects will be ensure food security of a nation. Development in the Koparti area in Visakhapatnam Chennai Industrial Corridor and overall area in Hyderabad Bangalore Industrial Corridor. Establishment of 10,000 need-based bioresource centers. आजकल जो bioresource को बहुत बायो प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, इसीलिए बायो रिसर्च 10,000 need-based bioresource center भी establish किया जाएंगे. The government will facilitate the implementation of a digital public infrastructures in agriculture for coverage of farmer and their lands in 3 years. Infrastructures, नया भारत का नया fourth phase of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 rural habitation will all weather roads, meaning thereby जिसमें हम अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 फेज हो रहा है और हम 4th फेज भी शुरू कर रहा है, जिसमें 25,000 रूरल हैबिटेशंस विल बी प्रोवाइडेड, जिसमें अभी ग्राम PMJ से हम जस्ट पॉपुलर वी नो इट इज़ अ PMJ से रोड, जिसमें अरुणाचल में भी हर कोने कोने में PMJ से रोड पहुंचाया जा रहा है. Plug and play industrial parks, development of plug and play industrial park in 100 cities in partnership with state and private sector. To build Andhra Pradesh capital Amravati, special financial support through multilateral developmental agencies, rupees 15,000 crore will be arranged. 26,000 crore packages for road projects and power plants worth rupees 21,000 crore has been announced for the Bihar. 12 industrial parks and the National Industrial Corridor Development Program. Purvodaya plan, economic opportunities for endowments, rich state in Eastern India. Provisions of 1.5 lakh crore for long-term interest-free loans to support the state in resource allocations. This is regarding rural development, जन जन की उन्नति, ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति. Fourth phase of प्रधानमंत्री that I have already stated, pre-ration will be continuous for 5 years. जो हम रोशन फ्री रोशन बातें पिछले साल से 5 years से जब बहुत साल से हम बात किया है, भाजपा गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ है, तो ये हम कंटिन्यू करने के लिए डिसीजन लिया है फॉर अनदर 5 years, जिसमें 35 kg ईस्ट मेंबर फैमिलीज़ को हम बांटते हैं. More than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the Northeast region. This is very important. PM Awas Yojana Rural 2.0, 2 crore additional houses to be provided to the poor families. PM Awas Yojana के तहत हम गरीबों को के लिए जो घर बनाता है वो भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसमें 2.66 lakhs crore for rural development, 5 crore tribal to be benefited across 63 villages. ये कार्यक्रम से हम 63,000 villages को हम एडवांटेज मिलेंगे. Building cities of future, स्मार्ट शहर, कुशल नागरिक. Promote water supply, sewage treatment and solid waste management project and services for 100 large cities through bankable projects.
encouraging states to lower stamp duties for properties purchased by women. ये जो हमारे नागरिक का ये जो वोमेन महिलाओं लोगों के लिए कि स्टाम्प जो भी प्रॉपर्टी परचेस करता है उसको हम स्टाम्प ड्यूटी यानी कि रेवेन्यू जो हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, यानी स्टाम्प पैसा कम लेंगे स्टाम्प ड्यूटी में. Framework for a creative development of existing cities known as brownfield development has been introduced. Transit-oriented development plan for 14 large cities with population of above 30 lakhs. जिसमें अभी जो मैं बताया गया कि 1 crore आवास to urban poor and middle class families will be provided under PM आवास योजना, जिसमें 1 crore हम घर मुहैया कराएंगे. 100 weekly hut to be developed in selected cities, जिसमें हम जिसमें सेलेक्टेड सिटीज़ होगा जिसमें वीकली हम 100 हट्स बनाएंगे. टूरिज्म एंड हेरिटेज, पर्यटन से परंपरा. डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर्स एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर्स ऑन काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर्स. Comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken, which should religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. Assistance to development of Odisha's scenic beauty temples, monument, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscape and pristine beaches. Next generation reforms, सबका साथ सबका विकास. Introduced of Jan Biswas Bill 2.0, a steps toward improving ease of doing business. यह बोला गया है कि एक बिल लाएंगे जन विश्वास के लिए for ease of doing business. FDI and overseas investment simplified to facilitate and promote opportunities for using Indian rupees as currency for overseas investment. Introductions of NPS Vatsalaya for minor to allow parents and guardians to contributions on behalf of the children. Improvement of data governance, collections, processing and management of data statistics, जिसमें 1 lakh crore provisions for benefiting women and girls, जिसमें 1 lakh crore women and girls will be benefited. New pension schemes, a solution that will address the relevant issues, protect the common citizen. Land record in urban areas will be digitalized with GIS mapping. जो भी लैंड रिलेटेड इशू को डिजिटलाइज करने के लिए डिसीजन लिया गया है. और जो भी कैडेस्ट्रल मैप जहाँ भी कैडेस्ट्रल मैप बनाएंगे उसको भी डिजिटलाइज कराएंगे. ग्रीन एनर्जी, ग्रीन सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा से देश की रक्षा. Energy transitions, policy document on energy transitions, pathway to balance the imperatives of employment, growth and environmental sustainability. Research and development of small and modular nuclear reactions. Government to partner with the private sectors for R&D of Bharat small modular reactors, naval technologies for clear energy and set up Bharat small reactors. Innovation, research and development, नवासर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन. Operationalization of अनुसंधान national research fund for basic research and prototype development. Custom duties on 25 critical miners for sectors like nuclear energy, space, defense, etc. are made fully exempt. और taxes
कस्टमर एंड ड्यूटीज़, जैसे टैक्सेस में कौन कौन सा ये में ये लगाया है उसको भी मैं बतला दूँ। टैक्स में सूट का उपहार, देश का उधार। Buoyed by GST's success, the tax structures will be simplified and rationalized to expand GST to remaining sector, जिसमें टैक्स ड्यूटी को भी हम सिंप्लीफाइड किया गया है। सिंपल टैक्स रिजाइम फॉर फॉरेन शिपिंग कंपनीज टू बूस्ट क्रूज टूरिज्म, जिसमें कैंसर ड्रग फुल एग्जम्पलेट फ्रॉम द कस्टमरी ड्यूटी, जिसमें हम कैंसर के लिए ड्रग्स जो यूज़ करता है उसको भी टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, जिसमें ट्रास्टुजम्बम, ड्रेक्सटोसियन, ये जो केमिकल नेम्स हैं ये सब को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। चेंज इन द बेसिक कस्टम ड्यूटी, BSD ऑन एक्सरे ट्यूब्स एंड फ्लैट फैनल्स डिटेक्टर्स फॉर मेडिकल एक्सरे मशीन्स अंडर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, जिसमें भी इसमें सिंप्लीफाइड किया गया है। कस्टम ड्यूटीज ऑन गोल्ड एंड सिल्वर रिड्यूस टू 60% एंड ऑन प्लेटिनियम टू 6.4%। BCD on mobile phone, mobile printed circuit board assembly and mobile charges reduced. Employment and investment, abolishment of angel tax for all classes of investors to bolster the startup ecosystem. Simple tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruise to promote cruise tourism in India. Safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Corporate tax rate of foreign companies was reduced from 40 to 35%. The relief to the middle class, जिसको मैं आपको बताऊं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ का जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा नील अप टू 3%, और 5% 3 to 7 lakhs में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसका 5% लगाया गया है। 7 to 10 lakhs को 10% लगाया गया है। 10 to 12 lakhs 15%, 20% जिसमें 12 to 15 lakhs होगा, 15 lakhs प्लस और एबव 30% टैक्स लगाया जा रहा है। अप टू 17,500 सेविंग इन द टैक्सेस, इसमें करके हम इतना सेव कर रहे हैं। मैं ये दिस इज इन नटसेल आई हैव जस्ट हाईलाइटेड द स्टेट नेशनल बजट 2024-25. That apart, I would also like to throw light on the state budget, which has been brought recently by our finance minister, that I would like to highlight. The state budget allocation for 2024-25 has been 47,823 crore in the BE 2024-25, and this year the government of Arunachal Pradesh has declared the year of the youth, and I would like to throw some lights about the policy program which has been brought by your budget, जिसमें हम बजट का अंदर में 100 days एजेंडा रखा गया है इन एवरी डिपार्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ टू एजुकेशन, जिसमें इस डिपार्टमेंट को हम 100 days का एजेंडा जिसमें कंप्लीट करने का रखा है। इफ़ आई गो ऑन टेल द ऑल दिस एजेंडाज, it will take so much time, so I would not like to tell, I am not going to tell it. However, I am telling it that 100 days का एजेंडा है जिसमें पूरा डिपार्टमेंट में फिक्स करके रखा है। एंड ईयर ऑफ द यूथ में आपको पहले बोला है कि एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ हो और स्पोर्ट्स हो, सब में रखा गया है।
और हम यूथ पॉलिसी भी बना रहे हैं इस बार, कैसे यूथ को कैसे आगे लेके जाना है। ये इट डजंट मीन दैट हम ये बार ईयर ऑफ द यूथ बोला है कि इस बार ही यूथ का प्रोग्राम होगा, ऐसे नहीं है। ये इसीलिए हमारा गवर्नमेंट ईयर ऑफ द यूथ बोला गया है कि हमारा यूथ सतर्क रहेगा, हमारा यूथ कोई काम में बिजी रह के आगे जाता है तो कल को हमारा स्टेट भी बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ होगा। तो इसीलिए ये सोच के हम ईयर ऑफ द यूथ बोला है। बोलते हुए मैं थोड़ा कुछ आप सबको बताऊं कि हमारा यूथ का टैलेंट हंट भी एक प्रोग्राम रखता है, आपको पता है, जिसमें हम वेरियस कैलेंडर इवेंट्स में रखा है। अरुणाचल मिस अरुणाचल है, अरुणाचल आइडल और सिंगिंग टैलेंट, ये सब 5 हम कैलेंडर इवेंट्स में रखा है हम यूथ को पार्टिसिपेट कराने के लिए। और यूथ एंड स्पोर्ट्स, जिसमें हम ओलंपिक के लिए हम स्पेशल केयर ले रहे हैं कि इस बार कमिंग 2028 एंड 32 के लिए हम स्पेशल फंड भी रखा है कि दोज हु आर रियली टैलेंट उसको हम प्रमोट करेंगे। ओलंपिक में जो भी एक मेडल भी लेके आए, इसीलिए हम ये ओलंपिक के 28 एंड 32 के लिए हम प्लान कर रहे हैं। एंड और एजुकेशन में आपको पता है, हम जो IIT में जो क्रैक करता है तो उसको हम 100% फ्री पढ़ाने का ये गवर्नमेंट प्रोग्राम रखा है बजट में। और जिसमें कमर्शियल पायलट में जो पढ़ेगा उसको 75%, मर्चेंट नेवी के लिए जो कोर्स मिलेगा उसको भी 75% रखा है। और जिसमें वर्ल्ड वाइड 150 डिस्टिंक्ट यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें अगर जो क्रैक कर पाता है उसको भी हम आपको फ्री 75% वर्ल्ड वाइड में कहीं भी हो आपको एकोमोडेशन ट्यूशन उसको करने का हमारा प्राविधान रखा है बजट में। एंड दैट एफर्ट यूथ के लिए जो अग्निवीर प्रोग्राम भी रखा है, जिसमें अग्निवीर प्रोग्राम में ये है कि इससे आपको पैरामिलिट्री हो और मिलिट्री आपको आर्म फोर्स में हो, जो भी आप जॉब करने चाहे, लेकिन आप कैसे पार्टिसिपेट करना है उसको नहीं जानने से उसको हम आर्मी पर्सनल को या पैरामिलिट्री फोर्स को हम 1-2 महीना के लिए ट्रेनिंग करवाएंगे जो यूथ एस्पायरेंट्स यूथ्स को, सो दैट दे कैन टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो आपको पता होगा कि जब आर्मी के साथ ट्रेनिंग करेगा तो कैसे ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग लेना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, उसको पहले से जान के रखेगा तो आप दूसरा रेस्ट ऑफ द स्टेट को भी आप कम्पीट कर सकता है। इसीलिए ये अग्निवीर भी रखा गया है। एंड ये जो नारी शक्ति के लिए भी वो सिर्फ यूथ के लिए नहीं, नारी को भी हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहा है कि वोमेन विंग को, जैसे दैट आई वुड लाइक टू टेल दैट in directions skill train over 110,000 women in 13,000 self-help groups in the state, which has resulted in more than 304,000 SSG self-help group in securing almost 75 crore as bank credit, जिसमें वोमेन को भी हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहा है। आप देखिए आजकल विलेज में, पहले हमारा काउंट्री साइड में यानी कि विलेज साइड में, बस्ती में औरत लोग सिर्फ खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, घर साफ सुथरा में रहता था। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्फासाइज ये गवर्नमेंट देने का वजह से दे आर ऑल बिजी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें भी हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और सजैते के जरिए अब आर्टिकल 275(1) में भी हम पहले ऐसा करता था कि जो भी सेंट्रल से फंड आता है उसको हम MLA लेड से मैचिंग शेयर करता था। अभी ये गवर्नमेंट जितना भी फंड आएगा उसको हम ईयर मार्क करके रखा है कि स्टेट बजट में भी इसको एलोकेशन दिया गया है।
ये एक जस्ट नटसेल में एक स्टेट बजट को भी हम जस्ट बतलाया गया है कि बट माई मेन मोटो ऑफ कन्वीनिंग दिस meeting with you and conference is just to highlight the union budget. So I have highlighted whatever I know, then I have gone for and the gist of the 2024-25 यूनियन बजट. Rightly pointed out, ये तो सही बात है कि आज तक फीमेल के लिए सेपरेट नहीं बनाया है, लेकिन we are also planning to that. It comes under the Sajeta department that I am also a mantri or minister of that department. That is really, this is a serious जो हमारा स्टेट में जो ड्रग मैनेज जो चल रहा है, ये इसमें वोमेन भी बहुत इन्वॉल्व है. उसके लिए भले ही इसको पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करने से भी वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू दैट एस्पेक्ट. दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू नाउ. रिसेंट इंसिडेंट एट पासीघाट जिसमें एक ड्रग यूज़र को इट इज़ एलेज दैट पीट के मराया गया है. पता नहीं कितना तक सही है, बट इट इज़ एलेज. प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन जिसमें आलो में भी है, हमारा माद्रस विजन चला रहा है, पासीघाट है, नाहरलगुन है, क्योंकि गवर्नमेंट में सफिशेंट नहीं होने की वजह से ये प्राइवेट रन कर रहा है. तो इसके लिए हम कैसे रन करना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग मॉडलिटीज़ तैयार करना चाहिए और हम ज़रूर उसके ऊपर तैयार करेंगे. मैंने उस दिन भी असेंबली में जिक्र किया और मैंने सीएम से भी डिस्कस किया है कि इंस्टीड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द रिमोट एरियाज़ हमको चाहिए अभी, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ जैसा वॉलीबॉल ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड एटलीस्ट ईच विलेज में होना चाहिए. तो इसीलिए मैंने अभी प्लान ये करा. अभी हम बजट जस्ट इस बार तो एज यू नो गवर्नमेंट अभी ये डिसीजन लिया है कि न्यू स्कीम टेकअप नहीं करेगा. ऑल लाइबिलिटीज़, पेंडिंग लाइबिलिटीज़ को क्लियर करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर से हम न्यू बजट प्रिपेयर कर ला रहा है, सेंक्शन कर रहा है. फॉर डेट ये बॉटम अप पॉलिसी लाया गया है कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट से रिक्वायर्ड स्कीम प्रोजेक्ट डालेंगे और यहाँ सेंटर में आके और सेंक्शन होगा. तो इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नोज़ कहाँ ये लगाना है. तो मेरा व्यू ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है स्पोर्ट्स पे के लिए हम एटलीस्ट एक फुटबॉल ग्राउंड एक विलेज में होना चाहिए, वॉलीबॉल होना चाहिए. एंड रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट इन द कैपिटल, एज यू नो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ सिंपू में बना रहा है और जब बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ भी बहुत अच्छा आ रहा है. और हम वी आर ट्राइंग टू लोकेट प्लॉट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ फुटबॉल ग्राउंड ऑफ एटलीस्ट 35,000 कैपेसिटी का, 25,000 कैपेसिटी का हम ढूंढ रहा है. उसमें लिए पैसा भी ईयरमार्क करके रखा है तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो वो बनने से और ज़मीन मिलते ही हम उसको बना रहे हैं. और ये जो है आपको इस बार आप तो पता है कि यूपिया में एक हमारा स्टेडियम है 35,000 कैपेसिटी का, संतोष ट्रॉफी रिसेंटली खेला है. तो इसमें हमारा स्पेशली इन द कैपिटल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू लैक ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना रहा है. और मेरा विचार में as you know it's been only 1 month I have been inducted in this assigned the portfolio as a sports minister. As a sports minister I would say that जो बेसिक नेसेसिटी को होना चाहिए, जितना बड़े बस्ती में बना के रखते हैं यूज़ नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए. सर मेरा सवाल रहेगा सर मुद्रा लोन के ऊपर में. जो मुद्रा लोन देते हैं अभी 10 से 20 लाख का डेट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है कि जो लोन होते हैं, जो मुद्रा लोन जो स्पेशली जो मिडिल क्लास लोगों के लिए होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होते हैं कि लोग पॉलिटिशियन के लोग जो बीवी होते हैं या फिर उनके परिवार लोग होते हैं वही अवेल कर पाते हैं, जो एक्चुअल में जिसको जाना है नहीं मिल पाते हैं. आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये मुद्रा लोन जो है एक्चुअल बेनिफिशरीज के ही जाना चाहिए? ना देखिए, इसमें मुद्रा लोन लेने के लिए देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस
जो गाइडलाइन को तो फॉलो करके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड गिव व्हाट आई फील, जिसमें वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैंक वाला मिल के कैसे वो लोग डिसाइड करता है वही करेंगे। उसमें तो कोई बड़े बड़े नेता या पॉलिटिशियन का ये लोग तो पैसा वाला जनरली नहीं लेना चाहिए, मेरा ओपिनियन यही है। ओके, और एक सवाल है ये, जैसे कि एमएसएमई में आपने बोला कि 24 न्यू ब्रांचेस खोलेंगे, अरुणाचल में कितने ब्रांचेस? That the government of India will decide that as a, क्योंकि I am not the representative of the government, I cannot tell that the central government will decide। अरुणाचल में अभी just budget lay down किया है, तो उसको allocation will be made later on। This time we have kept 100 crores and above for youths, and amount not yet it has been demarcated, and अभी जो उसको प्रॉपरली जस्ट बजट स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव में लीड किया है, तो अभी डिपार्टमेंट में अभी उसको बांटना जरूरी है। अभी नहीं बांटा है, तो उसमें बांटने का बाद कैसे उसको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको I will decide it later on regarding that elite matter, because I think that time I was not a minister of sports and youth, but from time I will specifically identify who are the real players and who is really keen to learn and to do best इन देयर कैपेसिटी। इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ में आपको पता है कि द स्पोर्ट्स एसोसिएशन इन अरुणाचल इज़ अ मशरूमिंग अप एंड उसको सब आके जो भी पता नहीं इसको आइडेंटिफाई करके रखा है कि नहीं कर रखा है। एज एंड व्हेन आई टुक ओवर द सर्च ऑफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ, I have seen there are mushrooming of associations, games and sports associations, which we need to ascertain who are really keen to do from their दिल से जो करने दिल है उसी को हम आइडेंटिफाइड करेंगे। नॉट दैट कि पैसा वैसा कमाने का जो करने का उसको तो आई विल नॉट एनकरेज इट। दैट इज़ द रीजन जो डिजर्विंग और नहीं मिल रहा है उसमें। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ डेवलपिंग स्टेट, कमिंग अप स्टेट, तो इसमें सब नेसेसिटी को तो फुलफिल तो नहीं कर सकता उसको, दैट आई हैव टू एडमिट इट, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग। आप तो पता है हमारा मोस्ट डायनेमिक चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ही इज़ ट्राइंग फ्रॉम हिज लेवल तो फुलफिल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन एक मिनिमम जो अमाउंट रिक्वायर करता है कि जो अच्छा स्पोर्ट्स होने के लिए, तो उसको हम आई हैव टू एडमिट हम हो नहीं पा रहा है। क्योंकि आप जो पहले एक पूछा है कि जो इस कैश इंसेंटिव्स को भी कोई को आप बोला है दे के नहीं मिल रहा है, ये तो इसको हम ये कोशिश कर रहा है कि जो भी इवेंट्स है कैलेंडर इवेंट्स वाला को ईयरमार्क करता है, लेकिन जो आगे जाएगा ये करे उसके लिए ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे के नहीं रखने का वजह से ये थोड़ा तकलीफ तो हो रहा है। दैट आई हैव टू एडमिट इट कि 100 डेज एजेंडा जो है हम ईस्ट डिपार्टमेंट को हम लोग टारगेट सेट करके रखा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप ये डिपार्टमेंट ये करना है वो करना है। तो मैं एक जस्ट एग्जांपल बताऊं कि से सपोज मैं आपको बताऊं कि ये वी आर वर्किंग टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग इटानगर नाहरलगुन ट्विन सिटी मास्टर प्लान टू एनेबल द कैपिटल सिटी टू बिकम ए फ्यूचर रेडी एंड मेक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन सिटी लाइफ फॉर सिटीजन्स। ये मीनिंग देयर बाय ये बोल रहे हैं कि आप ट्विन कैपिटल सिटी को मास्टर प्लान बनाना है अच्छा से, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन में हम लोग कैसे अच्छा से रह सकता है, तो उसको अभी तक मास्टर प्लान नहीं है। तो उसको मास्टर प्लान आप 100 डेज़ का अंदर में प्लान बना के गवर्नमेंट को ले टर्न करना है।